Welcome to Policy Beats. I am Dr. Khurram Mughal from Islamabad Policy Research Institute. I'm a senior research fellow here. Today we have Dr. Waqar Masood with us, Special Assistant to Prime Minister on Finance and Revenue. Our focus of discussion would be on Federal Budget 2022 and the way forward for the economy. So the first thing I want to discuss and highlight is Pakistan, the recent budget that have been proposed is basically focused on, you can say, the growth-oriented budget. We have a history of growth spurts in the economy, and that seems like that over the time, whenever the economy grows, we turn towards IMF and other financial institutions for assistance because of balance of payment crisis. The reason being told is that, and it is like well understood in literature, that import elasticity is much higher than export elasticity. So whenever our economy starts to boom, imports increase much faster than exports, and then we fall into a balance of payment crisis. So what do you think would happen this time? Are there any measures that have been taken to avoid this kind of a situation? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमारी कम से कम पिछली 3 दहाइयों की तारीख जो है वो यही बताती है कि हमारे यहाँ तरक्की के हादसात होते रहते हैं या तरक्की के सिलसिले शुरू होते हैं और फिर वो जैसे लूडो खेलते हैं, सांप का खा जाना और सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ये एक सिलसिला जारी है। अब देखिए, पेशगोई तो करना मुश्किल है, लेकिन हमने जो हिकमत अमली बनाई है उसका महवर यही है कि हम इस तरह के हादसे से जो है बचें। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंपोर्ट की इलास्टिसिटी with respect to rising income is very high, but export elasticity, और ये बड़ी मतलब यानी कि समझ में आने वाली बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बुनियादी तौर पे उसी सूरत में मुमकिन है कि जब प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़े, आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो जमा हो। हमारे पास अभी तक एक्सपोर्ट के मामले में निस्बतन आपको मालूम है कि हम रिवायती जो बरामदात हैं उन्हीं के अंदर हम उलझे रहे हैं, और वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है ज़्यादातर। तो हम इसको समझते हैं, और हम तो यानी कि ये मुश्किल है कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप की एक्सपोर्ट्स जो हैं 30, 35, 40 और 50 बिलियन तक बढ़ें, तो इस बेस से जो है हासिल करना, यही तवक्को रखना कि 55 से 60% अगर टेक्सटाइल का आपका शेयर रहेगा, तो मुझे तो ये मुश्किल नज़र आएगा कि ये हासिल कर सके। लिहाजा हमें गैर रिवायती नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी होगी, और वो 2 हैं बुनियादी तौर पर जिन पर हम फोकस कर रहे हैं। एक ये कि आईटी जो है, और आईटी का शोबा यानी हमारे एक तरह से जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उससे बड़ी मुताबिकत रखता है। हमारे पास बेपनाह इंसानी वसाइल हैं, और खुसूसन नौजवान हैं। अगर 30 साल से कम उम्र के अफराद को देखें हमारी आबादी में, तो उनका हिस्सा कोई 60 से 65% का निकलेगा। लिहाजा एक निस्बतन नौजवान और कम उम्र हमारी आबादी है, और उसको हमको ने तालीम के जेवर से भी आरास्ता करना है और फिर उनकी नौकरियों का ख्याल करना है। तो आईटी का शोबा ऐसा है जो इस सारी चीज से बड़ी मुताबिकत रखता है, और उसको हम फरोग देना चाहते हैं। और दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है हमारी ज़राअत से वाबस्ता है, और ज़राअत के अंदर भी हम रिवायती मामलात के अंदर उलझे हुए हैं। वो 4 मेजर क्रॉप्स हैं
بس انہی کی طرف توجہ رہتی ہے کہ وہ کیا. اب دیکھیں ہمارا مثال کے طور پہ اس میں سے ایک ہی جو ہے اصل ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم اپنی کراپ، اور وہ ہے چاول کی. لیکن وہ چاول کی کراپ بیچاری بڑی پٹی پڑی ہے اس سال، بہت تاریخی چاول پیدا ہوا ہے، لیکن دنیا میں اس کی مانگ کم ہے، اس کی قیمت کم ہے، اور ہم زیادہ بھی بھیج رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی ویلیو جو ہے کوئی 32% کم ہوئی ہے 11 مہینے کے پچھلے ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں. تو ہمیں ایک تو اس کا تدارک کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم نے ویلیو ایڈ کرنی ہے اپنی زراعت کے اندر. کیسے ویلیو ایڈ کریں گے؟ دیکھیں خصوصاً آپ کو وہ ہماری فصلیں جو کہ سبزیوں سے تعلق رکھتی ہیں، پھلوں سے تعلق رکھتی ہیں، پھولوں سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب دنیا میں ان تینوں چیزوں کی بے پناہ مانگ ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جو عموماً پیرشبل ہے کہ ان کی کوئی کولڈ چین ہو، ان کی پریزرویشن ہو، ان کی گریڈنگ ہو، ان کی پیکنگ ٹھیک ہو، اور پھر یہ کہ ہم مارکیٹس بھی تلاش کریں. اور تو ہم دونوں یہ ہم اصل کام کر رہے ہیں. ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو ہم نے فروغ دینا ہے، اور اس میں یہ ہارٹیکلچر جو ہے نا یہ سب سے بڑا عنصر ہے. اور اسی میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے لائیو سٹاک کی ہے. لائیو سٹاک میں پاکستان کا بالکل وہی صلاحیت ہے جو شاید چند ممالک میں دنیا میں ہو، لیکن ہمارا دودھ ضائع ہوتا ہے بمشکل 10% دودھ جو ہے اس کی پیکیجنگ ہو رہی ہے، اور ایکسپورٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یا اس کی پروسیسنگ اور اس کو پاؤڈر میں بدلنا، اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم لائیو سٹاک کو پوری اس کی چین جو ہے بالکل ڈاؤن سٹریم جو ہے اس کا، جہاں سے اینیمل فیٹنگ اور لارج، اب آپ نے سنا ہوگا کہ جو نئی ڈیری فارمز آ رہی ہیں وہ ہزاروں جانوروں پہ مبنی ہے اور باہر سے درآمد شدہ ہے. تو ان لوگوں کو ان کی مدد کرنی ہے. ہمارے ہاں ریگولیشنز بننے ہیں، وہ ریگولیشنز ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہ یہ جو ڈیولوشن ہوا ہے اس کے بعد کچھ بے ترتیبی ہوئی ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان میں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو پھر ہم جو بات کرتے ہیں، ایک آخری بات میں صرف اس میں اور اضافہ کر دوں کہ دیکھیں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ فی نفسی ہی اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ اس کو فائنینس کر سکیں تو وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ باہر سے وسائل آ رہے ہیں آپ کے پاس، جو آپ کے پاس مجموعی وسائل جو سرمایہ کاری کے لیے ہیں ان میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ہم مطلب جو ہے یعنی ہم مائنڈفل ہیں. ابھی بدقسمتی سے ہم نیٹ امپورٹر ہو گئے ہیں فوڈ کے، اور شوگر اور ویٹ اور پلسز، اور پھر مطلب ایڈیبل آئل تو ہمیشہ سے ہم منگا رہے ہیں. اس چیز کو ہمیں اوور کم کرنا ہوگا. یہ جو اس وقت ایک بڑھتا ہوا دباؤ نظر آ رہا ہے امپورٹس کے اوپر، بدقسمتی سے وہ ان مطلب یعنی کہ جو غیر معمولی قلت ہے ہمارے چند اہم ترین جو زراعت سے وابستہ فصلیں ہیں ان کی کمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ابھی تو وہ جو جس طرح کی ہم امپورٹس چاہتے ہیں، جو مشینری وغیرہ کی اور جو انویسٹمنٹ سے متعلق ہوں، ابھی ان کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی سر. اگر اس میں مطلب آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. The thing is کہ over the time, over the history of Pakistan, with development of technology and everything, consumption baskets ہماری چینج ہو گئی ہیں. if you realize that کہ مطلب کہاں ایک ٹائم پہ اب ہماری کنزمپشن باسکٹ سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، الیکٹرانک آئٹمس بھی شامل ہیں. اب جب آپ کی کنزیومر کنزمپشن باسکٹ چینج ہوتی جاتی ہے اینڈ وی آر بیکمنگ اے کنزیومر اورینٹیڈ اکانومی، کنزمپشن اورینٹیڈ اکانومی، obviously ہماری امپورٹ سے پریشر بلڈ اپ ہوتا جائے گا. ایک یہ ایلیمنٹ.
Second element is about comparative advantage. You are very right. Our immediate comparative advantage is the nature given comparative advantage, livestock hai, agriculture hai. But there are countries who have over the time developed comparative advantage in certain things. जैसे electronics है, manufacturing है, जिस तरह Germany is known to have machinery manufacturing, Japan is for electronics, Singapore is for electronics. So comparative advantage over the time आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं विद रेलेवेंट स्किल्स एंड जिस तरह आप कह रहे हैं कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट करके और इन्वेस्टिंग इन योर ह्यूमन कैपिटल, जो यूथ हमारे पास है, यूथ बल्ज है पाकिस्तान का. तो अब अगर आप इन दोनों चीजों को इकट्ठे देखें, द पॉइंट इज कि एक्चुअली हम लोगों ने एक रिसर्च की थी इस टॉपिक पे, खासतौर पे सीपेक के तनाजुर में, जिसकी आप अक्सर पाकिस्तान में बात होती है कि चाइना से जो चीजें इंपोर्ट करते हैं हम एक्सटेंसिवली, और वही चीजें चाइना जो आगे एक्सपोर्ट करता है, इफ वी समहाउ डेवलप कैपेसिटी ईदर थ्रू इंडस्ट्रियल रिलोकेशन और थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, कि वो चीजें हम डोमेस्टिकली चाइना के साथ मिलकर प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट भी करें, दैट वुड हेल्प अस इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज द एक्सपोर्ट प्रमोशन. तो मेन थिंग इज कि ओवर द टाइम कंट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज अपना इंप्रूव करने की या चेंज करने की या नई चीजों में गेन करने की. सर अब जो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें फर्दर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप अभी वो स्मॉल कार्स को बेनिफिट्स इंसेंटिव्स दिए गए, जिसकी वजह से स्मॉल कार्स की प्रोडक्शन पाकिस्तान में ऑब्वियसली देयर आर पॉसिबिलिटी वो इंक्रीज करेगी. सो अगेन दैट वुड इंक्रीज इंपोर्ट्स एंड प्रेशर, मोर प्रेशर ऑन इंपोर्ट्स. इसी तरह जो अभी हालांकि वी हर्ड दैट बम्पर क्रॉप हुई है पाकिस्तान में वीट की, दैट वाज अराउंड 27.3 मिलियन टन्स in FY21, लेकिन उसके and that is 8.1% more than previous years. मैं समझ गया. मैं मुगल साहब आपका जवाब देता हूँ. देखिए ये बिल्कुल होगा. साथ में ये देखने की बात है कि मुल्क में अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने से आमदनियां भी बढ़ रही हैं लोगों की जी, और हम इंशाल्लाह ताला यानी हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जो है रिजर्व बढ़ रहे हैं. हम इस डिमांड को सपोर्ट करना चाहेंगे. बाकी तो फिर मैं उसी पिछले सवाल में चला जाऊंगा. जैसा मैंने आपसे कहा है, हम डेवलपिंग कंट्री है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज में 2 से 3% का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काबिल बर्दाश्त है, और उसके लिए आपको जो है फाइनेंसिंग के वसाइल भी मिल जाते हैं. अब देखें हमारी इस वक्त कोई तकरीबन 300 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, तो और 1% का मतलब है $3 बिलियन. तो मैं अगर 3% ऑफ, अभी तो मैं 3% जा भी नहीं रहा, अगर हम कोई 2% भी ले जाएं तो ये $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये काबिल बर्दाश्त है, और इससे कोई रेड फ्लैग नहीं खड़ा होगा. तो ये इस वक्त तो हमारा पूरा साल जो है सरप्लस में गुजर गया. तो हो सकता है कि साल के आखिर के अंदर ये सरप्लस खत्म हो जाए और फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट शुरू हो जाए. अगर ये 6 और 9% से आगे बढ़ेगा तो मतलब जो है 9 से आगे बढ़े तो फिर जरा सा ख्याल करने की जरूरत है. लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके पास फाइनेंसिंग मौजूद है अच्छा, और जो है अभी देखें कल हमने यूरो बॉन्ड किया और $1 बिलियन हमको मिल गए पिछले ही यूरो बॉन्ड की तसलसल के अंदर. तो ये बहुत अच्छी हमारी साइन है, हमारी क्रेडिबिलिटी की निशानी है. और हमारा इस वक्त जो एक्सटर्नल डेट है वो 30% के करीब है, और इस हुकूमत ने ज्यादा एक्सटर्नल डेट लिया ही नहीं है. तो इसके पास कैपेसिटी है कि ये ले सकती है ताकि जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको सपोर्ट कर सके. सर उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द रेवेन्यू साइड, जो बजट में है, दे हैव बीन लाइक बजट में बड़ा क्लियरली मेंशन है दैट द मेन फोकस इज ऑन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट. ठीक, उसके लिए जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स का जिक्र किया जाता है, बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे. कैन यू पुट सम लाइट ऑन दैट कि वो अदर देन रजिस्टर के अलावा क्या क्या है उसमें? मैं इसमें 2-3 पहलू हैं. एक
पहलू जो है वो तो इस बात का है कि हमारे पास बहुत अजीमुशान डेटाबेस है, क्योंकि ये विदहोल्डिंग टैक्सेस का एक सिलसिला है जहां विदहोल्डिंग टैक्स कटता है, बहुत हमारे पास जो है मालूमात आ जाती हैं उससे मुताल्लिक। ठीक है जी। लेकिन हम उसकी तफसील को इस्तेमाल नहीं कर, तो अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि जो विदहोल्डिंग इन है, और उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि जिन जिन की विदहोल्डिंग आ रही है क्या ये लोग जो हैं फाइल या नहीं है, आप फिर उनके पीछे जा सकते हैं। एक काम हम ये कर रहे हैं कि अपनी सारी जो हमारा डेटाबेस है उस सब को भरपूर इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि हम चाहते हैं कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के दरमियान में जो भी कोई राब्ता हो वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, ऑटोमेटिकली हो, बजाय इसके कि किसी किसी की बिलमुशाफा उनको मुलाकात करने की ज़रूरत हो। तो ये जो है हमारा सारा, यानी कि अगर इस वक्त कोई 31 हमारे पास रिटर्न्स आ गए हैं साल टैक्स साल 20 के हैं, टैक्स ईयर 2020 के, और उसमें से बमुश्किल 19,000 किसी ने मैनुअली डाले, बाकी सारे के सारे ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन जो है वो उसकी बैकबोन भी हमने ठीक कर दिया है। इस दफ़ा जब हमने 8 दिसंबर को आखिरी डेट करार दे दिया और उस पर कायम रहे, और जिनको मुश्किलात थी उनको रुख्सत दे दी, थोड़ी सी मोहलत दे दी, तो डर था कि यार एकदम से हमारा सिस्टम ना बैठ जाए। तो हमने इस बात को अपनी जो सलाहियत है उसको बढ़ाया, और वो कहीं कोई शिकायत ही आपका हम तो लोड ही नहीं कर सकते अपने रिटर्न को एंड सो ऑन। लेकिन अब इसको और मुस्तहकम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर फरोग पाए ऐसे टैक्स प्रैक्टिशनर्स फॉर्म जो है भर दें। उसमें अगर हमें कुछ मदद करनी पड़ी वो हम करेंगे, और तो हम उनको इनेबल कर देंगे कि जी लोगों के बहाफ के ऊपर वो टैक्स जो है कर सकते। कुछ पहलू हो गए उससे। दूसरा पहलू जो इसका टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का है वो ये है कि मुल्क में पेमेंट सिस्टम दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की कर रहा है। ठीक है जी। और हमें जो है, यानी कि ये स्टेट बैंक के जरिए हो रहा है, सबके पास जैसे POS है, पॉइंट ऑफ सेल वगैरह, ये सब वहाँ से भी, और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल, ये सब जो है स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के तहत होता है। तो हमारे पास जो हमने रिटेल टियर 1 के ऊपर अभी तक हमने कोई 1000 के करीब लोगों को रजिस्टर किया है जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो अगर हम सिर्फ ब्रांचेस की पॉपुलेशन को लें तो 11,500 लोग आ गए POS वाले, लेकिन मुल्क में 70,000, 60 से 80,000 POS मौजूद है। हम वहां नहीं गए और हमें वहां जाना है, और उसको हम लेके चल रहे हैं। ये हमारा पहला काम है। फिर इसके साथ हम पूरी सप्लाई चेन को देखिए। सप्लाई चेन चलती है 2 जगहों से। एक, जब आपने प्रोडक्शन की और प्रोडक्शन को मार्केट में लेकर आए, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं और डीलर्स आते हैं, और फिर रिटेलर्स वगैरह आते हैं, होलसेल वगैरह आता है। तो हम पूरी सप्लाई चेन, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, लेबर ब्रदर्स हैं और नेशनल फूड्स वगैरह, ये सब के सब, इनकी सारी की सारी करियाना परचून तक जो है वो सेल्स जो हैं वो पेमेंट सिस्टम के जरिए जारी, कैश नहीं लेते ये लोग। तो हम जो हैं फिर इसी तरीके से ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स वजूद में आ रहे हैं। लोग ऑनलाइन जो है खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उसके मुतालिक भी हमने किया है। तो ये एक हमगीर
حکمت عملی ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نادرا سے بھی رابطہ ہے اور ان کی بھی مدد جو ہے اس سارے سلسلے میں ہم حاصل کر رہے ہیں. In reference to broadening the tax net, ایک اور مطلب سجیشن یا آئیڈیا اس میں ہو سکتا ہے بیکاز پچھلی گورنمنٹس میں ایک اس طرح کے انیشیٹوز یا انسینٹیوز دیے گئے تھے یا ان کو ریسٹرکشن لگائی گئی تھی جیسے اکاؤنٹس پہ ڈفرینٹ لیول آف آپ کہہ سکتے ہیں ودہولڈنگ ٹیکس ریٹ فار فائلرز اینڈ نان فائلرز. تو کسی طریقے سے اگر انفارمل سیکٹر کو انوالو کرنے کے لیے یا اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے فار بیٹر ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی ان جنرل کوئی نہ کوئی اس طرح کے انوویٹو انسینٹیوز کی ضرورت ہے so that the overall tax net can be broadened for the economy. سر ایک اگر چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں میرے کو. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جیسے ریئل ایجنٹس یہ جو ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس ہوتے ہیں. آر یو ڈوئنگ اینی تھنگ like incorporate them or institutionalize them in some framework or regularize their activities for better tax? وہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ سب کے سب اب ان کی رجسٹریشن ضروری ہو گئی ہے کیونکہ یہ فیٹف کے تحت ہمیں جو ہے جیولرس کو بھی رجسٹر کرنا ہے. جو کی پروفیشنز ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس والے وہ بھی اس میں آئیں گے. پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی ریئل اسٹیٹ والے اس میں آ رہے ہیں. تو وہ لوگ ایک رجسٹریشن پروسیس کے ذریعے گزر رہے ہیں. With that, we thank you very much for being our guest and we conclude our discussion for today. Thank you very much. Allah Hafiz.